Do you say you are all alone in your business? क्या आप कहते हैं कि मैं अपने व्यवसाय में अकेला All हूं? alone in your family? Nobody believes you. आपके परिवार में आप अकेले हैं, कोई विश्वास नहीं करता, Nobody supports you. कोई आपका सपोर्ट नहीं करता। Jesus went through every one of them. यीशु इनमें से हर एक परिस्थिति से होकर गुजरा। Why? क्यों? To be made perfect. ताकि वो सिद्ध किया जाए। Perfect for what? किस चीज के लिए सिद्ध? To bring your life into perfection. ताकि आपके जीवन को सिद्धता में लाए, To bring your life into perfection. ताकि आपके जीवन को वो पूर्ण बना दे। And he says today, और आज वो कहता है, my child, मेरे बच्चे, ask anything in my name. तो मेरे नाम से कुछ भी मांगो, I will do it. मैं वो करूंगा। I will do it. मैं उसे करूंगा, I will do it. मैं करूंगा, I will perfect it. मैं उसे पूरा करूंगा, And you will have perfection in your life. और तुम अपने जीवन में पूर्णता को पाओगे। That's the heart of Jesus for you. यीशु का यही मन है आपके लिए You will have a perfect job, कि आपके पास एक सिद्ध नौकरी हो, for perfect family life, एक सिद्ध पारिवारिक जीवन हो, perfect studies, सिद्ध पढ़ाई हो, perfect health, सिद्ध स्वास्थ्य हो, perfect salvation, सिद्ध उद्धार भी हो, perfect sanctification. सिद्ध पवित्रीकरण भी हो। Everything will be made perfect सब कुछ सिद्ध किया जाएगा, because Jesus went through every imperfection through his suffering to make you perfect. प्रभु यीशु मसीह अपने दुखों के द्वारा हर एक असिद्धता से गुजरे ताकि वो आपको सिद्ध बना दें। First of all, what does he make perfect in our life? सबसे पहले वो हमारे जीवन में क्या है जिसे सिद्ध करता In है? Matthew 5 and verse 48, मत्ती 5 और उसके वचन 48 में Jesus says, यीशु ने कहा, you will become perfect like your heavenly Father. तुम अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बन जाओगे। Perfect in what? किन बातों में सिद्ध बनेंगे? 1 John 4 and verse 8 says, पहला यूहन्ना 4 और वचन 8 कहता है, God is perfect in love, परमेश्वर जो है प्रेम में सिद्ध है, full of love, वो प्रेम से पूर्ण है, full of love. प्रेम से परिपूर्ण है। In Matthew 5 and verse 45, मत्ती 5 और वचन 45 में the Bible says, बाइबल कहती है, He sends His sunshine upon the good and the wicked. कि वह धूप को अच्छे और बुरे सब के ऊपर में देता है। He sends the rain upon the good and the wicked. वो दुष्ट और भले दोनों के ऊपर में वर्षा कराता है। The love of Jesus is perfect. प्रभु यीशु का प्रेम सिद्ध है। You will enjoy the perfect love of Jesus. आप यीशु के उस सिद्ध प्रेम का आनंद लेंगे। How is this love? ये प्रेम कैसा है? 2 Timothy 2:13 says, दूसरा तिमोथी 2:13 कहता है, though we are unfaithful, जो भी हम विश्वास योग्य नहीं हैं, God is faithful. ईश्वर विश्वास योग्य है। He loves us so much. वो हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है। Never say, I have been unfaithful to God. He will now forsake me and throw me away. कभी भी ना कहे मैं तो ईश्वर के प्रति अविश्वास योग्य रहा हूँ, अब वो मुझे भुला करके त्याग देगा। No, नहीं, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता He है। says, if you come and confess to me all your sins and your weaknesses, I'll be faithful to forgive you. वो कहता है, अगर तुम मेरे पास आकर के अपने सारे पापों और कमजोरियों को मान लो तो मैं विश्वास योग्य हूँ कि तुम्हें क्षमा करूँ, I'll make you perfect. मैं तुम्हें सिद्ध बनाऊंगा। A few years ago, कुछ साल पहले we had a meeting in Guntur. हमने And there were lakhs of people there. और वहां पर लाखों लोग आए थे। I was preaching the gospel. मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था And suddenly in the middle of the meeting, और सभा के बीच में I अचानक pointed to the chairs मैंने उन कुर्सियों की ओर इंगित किया and I said, there is a lady called Sumati in this place. और कहा कि यहाँ पर इस स्थान में सुमति नाम की एक स्त्री है। Sumati, your husband has left you and gone. God heals your heart. He Lord. will come back as a transformed person. Really, He will love you 100 times. है। And Sumati, और सुमति, your husband has left you. तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है And और he has gone. वो चला गया है।
But God heals your broken heart. लेकिन परमेश्वर तुम्हारे टूटे हृदय को चंगा कर रहा है। God says your husband will come back as a transformed person. परमेश्वर कहता है तुम्हारा पति एक बदले हुए इंसान के रूप में लौटेगा And he will come back and love you 100 times. और वो वापस आकर के तुमसे 100 गुना और प्रेम And करेगा your husband will come and say, I can't live without you. और आकर के तुमसे कहेगा तुम्हारे बगैर मैं जी भी नहीं सकता। I said, Sumati, God hears your prayer. मैंने कहा सुमति परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है I continued preaching. और मैंने अपना प्रवचन जारी रखा। And suddenly there was a big sound, rustle at the steps of the stage. और अचानक ही मंच के सीढ़ियों के पास बड़ी हड़बड़ी की आवाज A आई lady came running from the crowd. और भीड़ से एक महिला जो है दौड़ती हुई वहां पर आई। And she said, I am that Sumati. उसने कहा मैं वही सुमति हूँ, I am that Sumati. I was sitting right where you pointed. मैं वही सुमति हूँ और वहीं बैठी थी जहां आपने इशारा किया। And she had a prayer request in her hand just like you have right now. और अभी जैसे आपके हाथों में है उसके हाथ में भी एक प्रार्थना निवेदन लिखा हुआ था And she came and showed. और उसने आकर के दिखाया And she had written half the prayer request. और उसने अपने प्रार्थना निवेदन को अभी अधूरा ही लिखा हुआ था। She was sitting and writing the prayer request when I was preaching. जब मैं प्रचार कर रहा था तो वो बैठ करके अपने प्रार्थना निवेदन को लिख रही थी And she had written, My husband has left me. और उसने लिखा था मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, He should come back with all the love for me. वो मेरे लिए पूरे प्रेम के साथ वापस आए। As she was writing, the Holy Spirit showed me her name and her cries. जब वो लिखी रही थी उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे उसका नाम और साथ ही उसके हृदय की पीड़ा को भी दिखाया। And the prayer request was half written immediately. Even though it was half written, Jesus answered it immediately. लेकिन जो भी उसकी प्रार्थना निवेदन अधूरे लिखे हुए थे, यीशु ने उसके प्रार्थना को उत्तर तत्काल ही पूरा पूरा दिया। I laid hands upon her before the lakhs of people. उन लाखों लोगों के सामने मैंने उस पर अपने हाथ रखे And the Holy Spirit came upon her. और उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा And the suicidal spirit which was telling her, kill yourself, your husband is gone, you have no future, left her at that moment. और उसी घड़ी वो आत्महत्या की आत्मा जो उसे बार बार कहती थी अपने आप को खत्म कर डाल, अपने आप को मार डाल, क्योंकि तेरा पति तुझे छोड़ करके चला गया, अब वो आत्मा छोड़कर She went back with joy. वो आनंद के साथ वापस लौटी। She was going to find a job to sustain herself. वो अपने जीवन यापन के लिए एक नौकरी की खोज में जा रही थी। And as she was going in the street, she saw her husband. जब वो सड़क पर जा रही थी तो उसने अपने पति को वहां पर देखा And when he saw her, और जब उसके पति ने उसे देखा his heart broke उसका हृदय टूट गया and came running to her और वो दौड़ता हुआ उसके पास आया and said, I am sorry. और कहा मुझे माफ करो। And they both reconciled और उन दोनों ने आपस में मेल मिलाप कर लिया and joined back. और वापस एक हो गए। Of course, God gave him a job, निश्चय ही परमेश्वर ने उसे एक नौकरी दी, gave her a job. पत्नी को एक नौकरी दी। And in the next Jesus Calls meeting, both of them came to the platform and testified together as husband and wife. और हमारे अगले जीसस कॉल्स की सभा में दोनों पति पत्नी आकर के एक साथ मिल करके उन्होंने अपनी गवाही दी। What a wonderful Jesus we have. हमारे पास कितना अद्भुत प्यारा यीशु है। He made those hearts perfect. उन्होंने उन हृदयों को सिद्ध बना दिया। Wife's heart perfect. पत्नी के हृदय को सिद्ध बनाया, Husband's heart perfect. पति के हृदय को सिद्ध And बनाया the family life perfect. और पारिवारिक जीवन को सिद्ध बनाया। That's the power of transformation Jesus has, for which he paid the price on the cross. यही तो बदलाव की सामर्थ यीशु मसीह में है जिसकी कीमत उसने क्रूस पर आप और मेरे लिए चुकाई है। Believe on the Lord Jesus, प्रभु यीशु पर विश्वास and करें you and your household shall be saved. और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाओगे। Do not be afraid. बिल्कुल भी न डरें। Today Jesus is coming to you. आज यीशु आपके पास आ रहा है। Father, thank you for you are perfecting everything concerning your children. पिता आपका धन्यवाद क्योंकि अपने बच्चों के विषय आप सब कुछ पूरा कर रहे हैं। Even now, let the Spirit of God fill everyone here. होने दें इस समय भी परमेश्वर की आत्मा हर एक को यहाँ भर दे। In our weaknesses, your strength will be perfect. हमारी कमजोरियों में आपकी सामर्थ जो है सिद्ध होगी। Lord, your children might have come with so much of worries and anxieties within them. प्रभु जी आपके संतान अपने अंदर में बहुत सी चिंताओं को लेकर के आए होंगे। Lord, even now, let your strength
perfect everyone, Lord. अभी भी आपकी सामर्थ प्रभु हर एक के अंदर में सिद्ध हो जाए। Right now, and let your anointing fill everyone. इसी समय आपका अभिषेक हर एक को भर दे। Shall we all cry out to God? आइए हम सब परमेश्वर को पुकारें For God to strengthen कि us. परमेश्वर हमें बलवंत करें। The devil, the people around us might have put us down. हो सकता है कि शैतान या लोगों ने जो हमारे आसपास से हमें नीचा दिखाया, But then God can lift you up to greater heights. लेकिन परमेश्वर आज भी आपको ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। God can perfect everything. परमेश्वर हर एक चीजों को सिद्ध और पूरा कर सकता है। The Lord can bless you and give you the blessings one after the other. परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है और एक के बाद एक आशीष दे सकता है। Even now, are you ready to get filled by the power of क्या God? अभी भी आप परमेश्वर की सामर्थ से भरने को प्रस्तुत हैं? Your flesh may be weak, आपका शरीर चाहे कमजोर क्यों न हो, but then your spirit is willing. लेकिन आपकी आत्मा जो है वो तैयार है। The Lord is going to strengthen you right now. परमेश्वर अभी आपको बलवंत करने जा रहे हैं। Open your अपना hearts, हृदय खोलें, open your mouth, अपना मुंह खोलें and say and praise God and receive the Spirit of और God. परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करें। Even now, the presence of God is all over this place. अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति इस पूरे स्थान पर है। The Lord is here. प्रभु यहोवा यहाँ है, The King is here. वो राजा यहाँ पर है। The King who has everything is वो here. राजा जिसके पास सब कुछ है वो यहाँ है। You will not lack in any good thing. आपको किसी भली वस्तु की कोई घटी ना होगी प्रियो। Even now, shall we all praise God for some time, आइए हम थोड़ी देर के लिए सब परमेश्वर की स्तुति करें, thanking God for His promise, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए उसका धन्यवाद करें, saying, I will perfect everything concerning ये you. कहते हुए मैं तुम्हारे विषय सब कुछ को सिद्ध कर दूंगा। Even now, the Lord is filling you. अभी भी यहोवा परमेश्वर आपको भर रहा है, The Lord is blessing you. यहोवा आपको आशीष दे रहा है। You cannot do anything, आप कुछ भी नहीं कर सकते, but the Lord Himself will perfect everything. लेकिन परमेश्वर स्वयं सब कुछ पूरा करेंगे। Shall we all praise God? आइए हम सब ईश्वर की स्तुति करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for perfecting everything in your children's life. आपके संतानों के जीवन में सब सिद्ध करने के लिए Thank you, आपका Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Even now, the Lord's hand is coming upon अभी you. भी परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। The Lord's perfect blessing is coming upon you. परमेश्वर की सिद्ध आशीषें आप पर आ रही हैं। The Lord's perfect strength is coming upon you. परमेश्वर का सिद्ध बल आपके ऊपर आ रहा है। The Lord's perfection is coming upon you. परमेश्वर की सिद्धता आपके ऊपर आ रही है। The Lord is taking away all your weakness. परमेश्वर आपकी हर एक कमजोरी को बाहर निकाल रहे Come हैं। on, praise God. चलिए उसकी स्तुति करिए। Don't you feel the presence of क्या God? आप ईश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर Thank रहे हैं? God. धन्यवाद करें ईश्वर का। Thank God. ईश्वर का धन्यवाद Do करें। not be worried or anxious. किसी भी बात के लिए चिंतित या परेशान ना हो। You just look up to आप God. बस परमेश्वर को निहारें। He is our very present वो help. हमारा तत्काल मिलने वाला सहायक The है। help is coming. वो सहायता आपके लिए आ रही है। He is coming. वो आ रहा है। He is वो coming. आ रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु। Come on, open your mouth and praise मुंह खोल God. करके परमेश्वर की स्तुति You करें। are not going to be an ordinary person. आप जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। You are a carrier of Jesus. आप यीशु मसीह को लेकर के जाने वाले हैं, चलने वाले हैं। Jesus. यीशु मसीह, Jesus. यीशु, Jesus is rising up within प्रभु you. यीशु आपके अंदर में उठ खड़े हो रहे Come हैं। on, rejoice. चलिए आनंद मनाइए, Rejoice. आनंद मनाइए प्रियो। Thank God. ईश्वर का धन्यवाद Thank करें, God. ईश्वर का धन्यवाद करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Lord, you are filling the young and the old right प्रभु जी now. आप जवानों को और बूढ़ों को इस समय भर रहे हैं। You are perfecting
everyone right now. आप हर एक को इसी समय सिद्ध कर रहे हैं। Fill them, Lord. उन्हें भर दें प्रभु, Fill them, उन्हें भर दें Lord. प्रभु जी। Let your presence come upon आपकी everyone. उपस्थिति हर एक पर आ जाए, Let them feel your presence. वो आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु जी, Thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु जी। Come on, shout glory to चलिए God. परमेश्वर की महिमा करिए। The Lord is filling you right परमेश्वर now. आपको इस समय भर रहे हैं। How much we should thank हमें God. ईश्वर का कितना ज्यादा धन्यवाद करना है। आनंद Rejoice. मनाइए, Rejoice. खुश होइए। Hallelujah. हालेलुया, Praise you. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise Him. परमेश्वर की स्तुति हो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Fill them to the brim, O ओ प्रभु God. जी, उन्हें आप उमड़ता हुआ भर दें। Let them be filled to the full measure, Lord. पूर्णता के साथ भर दी जाए प्रभु, From top to bottom. ऊपर से नीचे तक। Let them be full of वो पूरी Jesus. तरह यीशु से भर जाए। Jesus. यीशु, Let them reflect वो Jesus. यीशु को प्रतिबिंबित करें। Let them reflect yourself, प्रभु Lord. जी, वो आपको प्रतिबिंबित करें। Let your glory descend upon your आपकी people. महिमा आपके लोगों के ऊपर उतर आए। The world may be in चाहे darkness, संसार अंधकार में हो, but the Lord's light is coming upon you. परंतु प्रभु की ज्योति आप पर आ रही है। Get filled by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से भर जाइए। The darknesses are leaving. हर एक अंधकार छोड़कर जा रहे The हैं। imperfections are हर leaving. एक असिद्धि जो है छोड़कर जा रही है। The perfect God is shining upon you right सिद्ध now. परमेश्वर अभी आप पर चमक रहा है। Everywhere you go, you will see हर perfection. जगह जहां आप जाएंगे, आप पूर्णता और सिद्धता को देखेंगे। Thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु, Thank you, धन्यवाद प्रभु Lord, जी। for making your people as successful people. अपने लोगों को सफल लोग बनाने के लिए धन्यवाद। Thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु जी। Whatever they do, let them prosper, वो जो भी Lord. करते हैं होने दें प्रभु जी की वो संपन्न होने पाए। Bless them, उन्हें Lord. आशीष दे प्रभु, Bless them, उन्हें आशीष दे Lord. प्रभु। I know many of you have dedicated yourself to serve मैं God. जानती हूँ आप में से अनेक ने ईश्वर की सेवा के लिए खुद को अर्पित किया है। Can you please lift your hands? मेहरबानी से क्या आप अपने हाथ ऊपर करेंगे? May the Lord's anointing come upon you specially. परमेश्वर का अभिषेक विशेष रूप से आपके ऊपर आ जाए। Father, hold on to their hands, Lord. पिताजी, उनके हाथों को आप थाम लें, Hold on to their hands. उनके हाथों को थाम लें। Let their hands be healing hands उन्हें दें प्रभु उनके हाथ जो है चंगाई वाले हाथ हों, to heal the broken-hearted people कि वो टूटे हृदय के लोगों को चंगाई दें। as they have dedicated their lives to serve जब you. उन्होंने अपना जीवन आपकी सेवा के निमित्त समर्पित किया है, Right now, anoint them, Lord, with your special anointing. इस समय प्रभु अपने विशेष अभिषेक से उनका अभिषेक करें। Fill them, उन्हें Lord. भर दें प्रभु जी, Fill them, Lord यीशु Jesus. उन्हें भर दें, Fill them without उन्हें measure. बेपरिमाण रूप से आत्मा से भर दें, Fill them with all the gifts of the Holy उन्हें पवित्र Spirit. आत्मा के हर एक वरदानों से भर दें And use them, और उन्हें Lord. इस्तेमाल करें। Take them around the उन्हें पूरे world. विश्व में आप लेकर के जाएं। Let them be a blessing, O प्रभु God. जी, वे एक आशीष का कारण हो। Thank you for blessing them. धन्यवाद उन्हें आशीष देने के लिए। Father, thank you for the miracles you have done right now. इस समय आपने जो चमत्कार के लिए पिता, उसके लिए धन्यवाद। Let them go with miracles. उन्हें दे यहाँ से वो चमत्कारों के साथ Let जाएं। your people go with आपके miracles. लोग चमत्कारों के साथ जाएं, Go with blessing. आशीषों के साथ लौटें। In Jesus' name, यीशु के नाम में God bless you.